morning, my dear students. Today it is 20th of November, Saturday, and on behalf of Vimla Devi Public School, Siriari, Raipur, I welcome you all in your CG board class 10 social science. We are studying mineral resources and industrialization, lesson 4, and this is the sixth part of this video lesson series. We have already completed part 1 to 5th, and today the topic will be the factors which affect if we want to establish any industrialization in any industry, right? You know the methodology. You will get line by line Hindi explanation, interpretation, and open your book social science page number 47. Before starting today's topic, go through 1 to 5th, means revise your lessons and read from your book. Don't read from the screen, right? Use headphone, read with me, underline, and if you have any difficulty, and we will discuss that portion in the classroom so that you will be ready, right? I am going to scroll down very slowly. Read from your book. Yes. And we have completed distribution of minerals. Go through lesson 1 to 5th. In this way you will have a revision of this lesson. Revision is the key to success, remember. And now industrialization, in the last part we completed. Now today's topic is, this is the sixth part, factors impacting establishment of industries. देखिए फैक्टर्स इम्पैक्टिंग यानी इम्पैक्ट, प्रभाव डालना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज यानी उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक. फैक्टर्स इम्पैक्टिंग इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. One of the features of modern industries is that they are extremely mobile and constantly keep changing their location. आधुनिक उद्योगों, मॉडर्न इंडस्ट्रीज, आधुनिक उद्योगों की एक विशेषता यह है कि वे अत्यंत अस्थिर हैं और सतत अपनी जगह परिवर्तित करते रहते हैं. Many regions which got industrialized where hundreds of factories were established and lakhs of laborers started are deserted today because the industries have migrated. उदाहरण के लिए जिन क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण शुरू हुआ था, जहाँ सैकड़ों कारखाने लगे थे और लाखों मजदूर बसे थे, आज वीरान हैं. क्यों? क्योंकि उद्योग वहाँ से पलायन कर गए हैं. इन द 1970 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज इन इंडिया सच एज मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, इंदौर एक्सेट्रा हैड ह्यूज क्लॉथ मिल्स. 1970 के दशक में भारत के प्रमुख शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, इंदौर आदि में विशाल कपड़ा मिलें थी. इन द 1980 almost all these closed down and power looms that produced at a much faster rate came up in absolutely new locations. 1980 के दशक में ये सब मिलें बंद हो गई और बिल्कुल नए इलाकों में
छोटे छोटे पावर लूम संयंत्र स्थापित हुए जो कि पहले से अधिक मात्रा में कपड़ा उत्पादन करने लगे। सिमिलरली इन अमेरिका, फैक्ट्रीज इन एरियाज विच हैड ह्यूज कार प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैव क्लोज्ड डाउन। इसी तरह अमेरिका में जिन क्षेत्रों में विशाल मोटर गाड़ी के उद्योग लगे थे, अब वहाँ सारे उद्योग बंद हो गए हैं। Today's industries are divided into small units and spread across the world. आज यह उद्योग कई छोटी छोटी इकाइयों में बंटकर दुनिया के कई देशों में फैला हुआ है। What are the factors which determine the location of industries? तो यह निर्णय किस तरह होता है कि कोई उद्योग कहाँ पर लगाया जाए। There are many factors, but the determining factor is profit. इसके लगाने के कई कारण हैं या कई कारक हैं, मगर सबसे निर्णायक सरोकार है मुनाफा। At any point of time, a capitalist will invest in setting up a factory in a location that is most profitable for them and will continue to do so only as long as it is still more profitable than other locations. यानी पूंजीपतियों को किसी समय जहां कारखाने लगाने से सबसे अधिक मुनाफा की अपेक्षा होगी, वहीं वे कारखाने लगाएंगे और उसी समय तक जब तक किसी दूसरी जगह से अधिक मुनाफा ना मिल जाए। Which location will yield high profit depends on a number of factors. जहाँ कारखाना कई कारकों पर निर्भर होता है। प्रोडक्शन टेक्निक यानी उत्पादन की तकनीक, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी कच्चे माल के स्रोत, मार्केट यानी बाजार, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ यातायात के साधन, इंडस्ट्रियल एंड टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट यानी राज्य की औद्योगिक कर नीति ऑफ द स्टेट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड लो पेड लेबर, और सबसे महत्वपूर्ण कुशल मगर कम वेतन पर काम करने वाले कामगारों की उपलब्धता। ट्रांसपोर्ट रिसोर्सेज वर मच लेस डेवलप्ड इन 18th and 19th century. Transport resources were much less developed in the 18th and 19th century. यानी 18वीं और 19वीं सदी में यातायात के साधन कम विकसित थे। Huge quantities of iron ore and coal were used to prepare small quantities of steel. यानी अत्यधिक मात्रा में लौह अयस्क और कोयला जैसे कच्चे माल के उपयोग के बाद कम मात्रा में लोहा या इस्पात बनता था। सो स्टील प्लांट्स वर सेट अप नियर द माइंस सो दैट रॉ मटेरियल नीड नॉट बी ट्रांसपोर्टेड टू फॉर ऑफ प्लेसेस। इस कारण खदानों के पास ही लोहा गलाने के उद्योग लगे ताकि कच्चा माल को दूर तक नहीं ले जाना पड़े। But with time, high quality ore in the mines got depleted and had to be procured from far off places. लेकिन समय के साथ ही इन खदानों में उच्च कोटि का कच्चा माल मिलना बंद होने लगा और दूर दराज के क्षेत्रों से मंगाना पड़ा। In this situation, the steel industry began to shift to more suitable locations. ऐसे में पुराने इलाकों से लोहा उद्योग हटने लगे और अन्य सुविधाजनक जगहों में लगाए जाने लगे। When transportation facilities began to develop, the industries began to shift to places where skill and cheap labor was available.
जब यातायात और कच्चा माल पहुंचाने के साधन सस्ते साधन बने तो ये उद्योग ऐसी जगह पर लगने लगे जहां कुशल मजदूर मिले और जहां कम मजदूरी पर काम करने के लिए लोग तैयार थे। Industrialists found that workers in older locations had become organized and had fought for higher wages and better facilities. उद्योगपतियों ने पाया कि पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों ने संगठित होकर अपने वेतन और अन्य सुविधाओं को बढ़ा लिया था। Under pressure from workers in those areas, many new laws in favor of workers had been enacted too, which ensured that workers were compensated if laid off, or government regulated minimum wages and regulated work hours etc. देखिए इसका मतलब क्या है कि मजदूरों के दबाव के कारण अंडर प्रेशर फ्रॉम वर्कर्स उन देशों में मजदूरों के हित में कई कानून भी बने थे, जैसे किसी मजदूर को बिना मुआवजा काम से नहीं निकाला जा सकता था। राइट। जैसे कि बिना मुआवजा, जैसे मैंने कहा, मजदूरों को काम से नहीं निकाला जा सकता था। यहाँ पे वर्कर्स वर कंपनसेटेड इफ लेड ऑफ है ना, नौकरी से निकालना, कंपनसेटेड यानी मुआवजा देना, या मजदूरों के काम के घंटे व न्यूनतम वेतन सरकार द्वारा निर्धारित होता था। राइट। अब क्या हुआ? The industrialists began to set up their industries in colonies or countries where, because of poverty, laborers were ready to work at low wages. Where laws for labor welfare were not in place and labor was not organized. जब उद्योगपति उपनिवेश और अन्य देशों में अपना उद्योग लगाने लगे जहां गरीबी के कारण लोग कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो जाते थे, जहां सरकारों ने मजदूरों के हित में कानून नहीं बनाए थे या उन्हें लागू नहीं कर रहे थे, और जहां मजदूर संगठित नहीं थे। This became possible because of rapid expansion of fast transport that was cheap. यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि आज यातायात और संचार तेज होने के साथ साथ बहुत सस्ता भी हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, आयरन ओर माइंड इन दंतेवाड़ा is transported 250 km away to Visakhapatnam port through a pipeline in slurry form. उदाहरण के लिए, दंतेवाड़ा से खोदा गया लौह अयस्क पानी के साथ घोलकर पाइपलाइन के माध्यम से बहाकर 250 किलोमीटर दूर विशाखापट्टनम बंदरगाह तक ले जाया जा सकता है। There the slurry is made into pellets and exported. वहाँ उसे लौह कंकड़ के रूप में परिवर्तित करके निर्यात किया जाता है। It is called the किरंदुल विशाखापट्टनम स्लरी पाइपलाइन। इसे किरंदुल विशाखापट्टनम स्लरी लाइन कहते हैं। A similar pipeline project exists in ओडिशा too. इसी तरह की एक पाइपलाइन ओडिशा में भी बनी हुई है। Now here in this figure 4.6 you can see part of Dantewada Visakhapatnam slurry line. Here the iron ore solution is made. दंतेवाड़ा विशाखापट्टनम स्लरी लाइन का अंश, यहाँ लोहे का घोल बनाया जाता है। सेकेंड, रॉ मटेरियल। नेक्स्ट पॉइंट,
Raw material, कच्चा माल. Industries are generally set up near source of raw material so that expenses on transport can be reduced. सामान्य तौर पर उद्योगों की स्थापना कच्चे माल के स्थानों पर की जाती है जिससे परिवहन लागत कम होती है. If we buy ₹100 worth of iron and raw cotton, you can guess which will be lighter. अगर हम 100 रुपये का लोहा और उतने ही कीमत का कपास खरीदेंगे तो कौन अधिक वजनदार होगा, आप स्वयं सोच सकते हैं. Iron, aluminium, bauxite, limestone, etc. are heavy ores. लोहा, एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, चूने का पत्थर आदि भारी अयस्क हैं. Establishing industries that use these ores far from the mining areas will greatly increase production cost. इससे इन उत्पादन क्षेत्रों से दूर औद्योगिक इकाई स्थापित करने पर यातायात का खर्च उत्पादन के मूल्य को अधिक बढ़ा देगा. Which is why these industries are set up near the source of raw material. इसीलिए इस तरह के उद्योगों की स्थापना इनके समीप की जाती है. Aluminium factory at Korba, steel plant in Bhilai, cement plant in Jamul near Durg are located close to mines that produce the raw material. कोरबा में एल्यूमिनियम का कारखाना, भिलाई में लोहा इस्पात कारखाना और दुर्ग के जामुल में सीमेंट कारखाना खदानों के पास लगाया गया है. However, the cost of transportation for cotton or cotton yarn is much less. Therefore, the factories are often far away from the raw material sources. इसके विपरीत कपास का भार बहुत ही कम होने के कारण कपास के परिवहन या उससे बने धागे के परिवहन में होने वाला खर्च अपेक्षाकृत कम होता है. इसीलिए सूती वस्त्र उद्योग बाजार के समीप लगाया जा सकता है. Now, my dear students, here are some questions for you. Can you tell the advantage of producing jaggery near to sugarcane field? क्या आप बता सकते हैं कि गन्ने से गुड़ बनाने का काम गन्ने के खेतों के पास करने में क्या फ़ायदा हो सकते हैं? Find out where and to whom sugarcane farmers of छत्तीसगढ़ sell their crop. छत्तीसगढ़ के कई जिलों में किसान गन्ने कहाँ पर और किसे बेचते हैं और वे इसका क्या करते हैं. Go through the above paragraph regarding raw material and the relationship with transportation and the location of factories or industries, and you will be able to find out the answer. Now we will go ahead to the next topic here, transport. ट्रांसपोर्ट यानी यहाँ परिवहन. टुडे प्रोडक्शन इज डन इन मैनी डिफरेंट पार्ट्स. अब उत्पादन कई टुकड़ों में हो रहा है. प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्रोडक्ट आर डन इन डिफरेंट प्लेसेस, क्वाइट ऑफन इन लोकेशंस across the globe and then brought together and assembled in a location. क्या बोल रहा है इस लाइन में कि उत्पादन के कई हिस्से या कल पुर्जे आपस के कारखानों या विभिन्न देशों के छोटे कारखानों में तैयार होकर आते हैं और किसी एक देश में इन्हें जोड़कर पूरा किया जाता है और कंपनी द्वारा बाजार में बेच दिया जाता है. दिस मेक्स ट्रांसपोर्टेशन एन इसेंशियल पार्ट ऑफ प्रोडक्शन. और इसके लिए परिवहन की ज़रूरत पड़ती है. दिस इज वाई अदर देन रॉ मटेरियल्स ट्रांसपोर्टेशन इज आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट टू डिसाइड द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. कच्चे माल या इनपुट को उद्योग तक लाने एवं तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने का कार्य परिवहन की सहायता से ही संभव होता है.
इस कारण उद्योगों के स्थान निर्धारण में परिवहन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वाटर, रोड एंड रेल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर ऑल यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स। परिवहन के रूप में जल, सड़क, रेल और हवाई यातायात के साधनों का उपयोग किया जाता है। They help They help transport raw material to production facility and produce goods to the market। और इनके माध्यम से कच्चे माल को उद्योग तक लाने और उत्पादित वस्तुओं को बाजार तक ले जाने का काम किया जाता है। Now, पावर आर एनर्जी, शक्ति या ऊर्जा। इलेक्ट्रिक पावर टू कीप द मशीन्स इन अ फैक्ट्री गोइंग। इलेक्ट्रिक पावर टू कीप द मशीन इन अ फैक्ट्री गोइंग, यानी किसी भी उद्योग में मशीनों को चलाने के लिए विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल, हाइडल पावर स्टेशन, विंड, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एक्सेट्रा। ये शक्ति ताप बिजली कोयले से, जल विद्युत बांधों से, पवन बिजली, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि से प्राप्त होती है। कोल इज अ हैवी मटेरियल। कोयला वजन में काफ़ी भारी होता है। कोल इज अ हैवी मटेरियल। Also, large amount of ash is produced when coal is burned in power plants burned to generate energy। साथ ही कोयले से बनने वाली बिजली ग्रह के आसपास के क्षेत्रों में कोयले से निकलने वाली राख या ऐश से काफ़ी प्रदूषण होता है। द सब्स्टिट्यूट फॉर कोल इज डीजल। कोयले का विकल्प है डीजल। बट not only does it pollute the environment, it is available in nature in limited quantities। लेकिन ये दोनों पर्यावरण की दृष्टि से प्रदूषणकारी है। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रकृति में ये सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है और समय के साथ इनके खत्म हो जाने का डर है। Therefore, alternate source of energy are now being explored। इसीलिए आजकल पर्यावरणीय दृष्टिकोण से ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत भी तलाशे जाने लगे हैं। सोलर एनर्जी, हाइडल पावर, विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम वेस्ट आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बिजली, वायु ऊर्जा, कचरे से बिजली बनाना आदि। But the problem of this dam-based power generation is that valuable forest, agricultural land and village get submerged। लेकिन इसमें से सबसे किफ़ायती बिजली बांधों से बनने वाली जल विद्युत ऊर्जा है, लेकिन बड़े बांधों से बहुमूल्य वन और खेती हर जमीन डूब जाती है और कई गांव उजड़ जाते हैं। Small and medium dam or hydel power stations on mountain slopes could be an alternative। यानी कि छोटे और मध्यम बांध और पहाड़ी ढलानों पर बने बिजली संयंत्र इसके उचित विकल्प हो सकते हैं। State where electricity is continuously available have a higher chance of industrialization। जिन राज्यों या देश में विद्युत सतत व सस्ती मिलती है, वहाँ औद्योगिकीकरण की संभावनाएं बढ़ जाती है। Electricity has to be available round the clock for 24 hours a day in the factories।
राइट। यहाँ सतत का तात्पर्य किसी भी कारखाने में मशीन चलाने के लिए 24 घंटे निर्बाध रूप से मिलते रहने से है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑन दिस डे ऑफ 20th November 2021 Saturday, this is the sufficient for this day in this video lesson. In the next video lesson we will continue with this topic and revise your work, do your homework, and if you have any difficulty underline that and you can ask me in the classroom, we will discuss. जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपको रीडिंग इज वेरी इम्पॉर्टेंट, रीडिंग इज वेरी इम्पॉर्टेंट, स्टडी कीजिए और उसको लाइन बाय लाइन समझिए। लाइन बाय लाइन रीडिंग इज वेरी इम्पॉर्टेंट। टिल देन, गुड बाय।